انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ افغانستان کی صورتحال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ 1 ماہ ہو گیا ہے طالبان کے کنٹرول میں آئے ہوئے، اور وہاں کی صورتحال کی پل پل جو خبریں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس پہلو پہ بات کرنے والے ہیں اور جو خدشات ہیں پاکستان میں کہ شاید جو حالات پیدا ہوئے افغانستان میں اس کی وجہ سے ایک نیا پناہ گزینوں کا سیلاب شاید پاکستان کی طرف رخ کرے، کیونکہ جو جہازوں میں اور جو ویڈیوز ہم نے دیکھیں جس طرح کی لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آخر آن گراؤنڈ صورتحال ہے کیا؟ اور اس صورتحال کو سب سے بہتر جو بتا سکتے ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو دے سکتے ہیں، وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے UNHCR، پناہ گزینوں کا جو ادارہ ہے۔ اور اس کے خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ ترجمان جنیوا میں جو ہوتے تھے، پہلے پاکستان میں بھی تھے، ہمیں یاد ہے 2001 میں اکٹھے ہم نے چمن اور بلوچستان میں پناہ گزینوں اور جو صورتحال تھی اس کو کور کیا تھا، انہوں نے اپنے ادارے کے لیے، ہم نے اپنے ادارے کے لیے۔ تو اب یہ پھر آئے ہوئے ہیں، تو بابر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، UNHCR کے ترجمان ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں اور پاکستان کا کیا ان کو اب تک فیڈ بیک ملا ہے، کیا پاکستان پناہ گزینوں کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ تو بابر بلوچ صاحب، آپ کوئٹہ بھی گئے پچھلے دنوں، آپ نے طورخم بھی جا کر دورہ کیا، آپ کی تنظیم کے جو سربراہ ہیں فلپو گرانڈی وہ بھی آئے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہی ہیں، اس وقت موجود ہیں اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو UN کی اسیسمنٹ کیا ہے افغانستان میں جو طالبان حکومت آئی ہے اس کے بعد؟ کیا پاکستان کو ایک پناہ گزینوں کے سیلاب کی توقع کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ ہارون بھائی۔ اب تک جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی طور پہ افغانستان کے اندر حالات بہت گمبھیر ہیں، اور جو ہیومینیٹیرین کرائسس یا جو ڈسپلیسمنٹ کرائسس ہم اس کو کہتے ہیں وہ افغانستان کے اندر ہی ہے۔ اس سال کے اعداد و شمار 6,34,000 سے زائد افغان اپنے گھروں سے اور علاقوں سے بے گھر ہوئے ہیں، اور یہ اس سال کے شروع سے جو موجودہ صورتحال ہے اس نے اس کو اور چیلنجنگ بنا دیا ہے۔ لیکن جو ہم نے دیکھا ہے، اور یہ 6,30,000 جو اب بے گھر ہوئے ہیں اس سال، یہ جا کے ملتے ہیں ان 35 لاکھ افراد کے ساتھ جو اوور آل بے گھر ہیں افغانستان میں۔ تو یہ جو 6.5 لاکھ ہے یہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہے یا یہ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں؟ یہ 6,33,000 کے جو قریب ہیں یہ افغانستان کے اندر ہی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ، کہ اپنے بارڈرز کے اندر ہی ہوئے ہیں، اور یہ جا کے ملتے ہیں ان 35 لاکھ لوگوں سے جو اس سے جو اب ان کی ٹوٹل تعداد ہے 35 لاکھ کے قریب افغانستان کے اندر بے گھر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی جو آبادی ہے ٹوٹل وہ 40 ملین کے قریب ہے، اور اس میں سے آدھی آبادی 18 ملین یا 20 ملین کے لگ بھگ وہ لوگ تھے جو اس صورتحال سے پہلے ہیومینیٹیرین ایڈ پہ، یہ جن کو مدد کی ضرورت تھی ہمارے جیسے اداروں سے یا دوسروں سے، جن پہ وہ انحصار کر رہے تھے۔ اب وہ صورتحال اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ تو فی الحال تو افغان بہت بڑی تعداد میں اپنے وطن کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ آپ نے ایویکیشنز کی بات کی، اس پہ بہت زیادہ فوکس بھی رہا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کی جو امیجز تھے، یہ جو ہم نے تصاویر دیکھی، مطلب افسوسناک اور دل خراش تصویریں بھی تھی اس میں، کچھ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا وہ کہ وہ ہو جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ باب اب پیچھے رہ گیا ہے۔ اب افغانستان کے اندر جو 40 ملین لوگ ہیں ان کو اب فوری طور پہ مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارا خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ مدد ان تک نہیں پہنچائی گئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اور دوسرے اداروں یا ممالک کی طرف سے، تو ایک کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرافی کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا بحران پیدا ہوگا کہ جس کو شاید ہینڈل کرنا مشکل ہو۔ تو یہ تو آپ نے افغانستان کے اندر کی صورتحال بتائی کہ وہاں لوگوں کو کتنی امداد کی سخت ضرورت ہے۔ ایک وجہ جو اس دفعہ ابھی 1 ماہ ہو گیا طالبان کے کنٹرول میں آئے، شاید پناہ گزینوں کے نہ آنے کی وجہ تمام ہمسایہ ممالک کی اپنی بارڈرز بند کرنا بھی ہے۔
जिन सबको पता है कि सब ममालिक ने बॉर्डर्स बंद की हुई हैं, तिजारत के लिए खुली हुई हैं लेकिन आम आदमी के लिए बंद हैं। तो वो कितना बड़ा फैक्टर है कि अगर कल को पाकिस्तान ऐलान करता है कि हम बॉर्डर खोल देते हैं तो सैलाब मुमकिन हो जाएगा? मेरे ख्याल में चीज़ों को रियलिटी में देखना चाहिए। जो तहमीद बांधी गई कि अंदर के हालात कैसे हैं, उसकी एक रेलेवेंस से उससे जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि हकीकतन मैं भी चमन के बॉर्डर पे गया, स्पिन बोल्डर के पास देखा। वो रेला जिसकी लोग बात करते हैं, जिसकी तवक्को करते हैं, वो हमने नहीं देखा बड़े नंबर में। आपको पता है, तुरखम पे हों या स्पिन बोल्डर पे हों, अफ़गानिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर हो या अफ़गानिस्तान का सेंट्रल एशिया के साथ बॉर्डर हो, अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। उसकी डिपेंडेंस अपने हमसाये ममालिक पर है। मतलब जितने भी चीज़ें जाती हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की, वो उन पे डिपेंडेंट है। तो वो फ़्लो तो है। हमने अब तक उस बड़े तादाद में लोगों को मुहाजिर बनते नहीं देखा। अब तक ये सूरत हाल है, कल का पता नहीं है। जो सूरत हाल इस वक्त ऑन द ग्राउंड है, माशी सूरत हाल, लोगों को सोशल सर्विसेज तक एक्सेस, बड़ी तादाद अपने मुल्क के अंदर बेघर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल वो तादाद हमने नहीं देखी। बॉर्डर मैनेज करना मुल्कों के जो अपने हक हैं या हुकूक हैं उनमें शामिल है। हर मुल्क अपने बॉर्डर मैनेज करता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और यही हो रहा है बॉर्डर पे। जो मैंने भी देखा, लोगों से बात हुई, वो ये है कि आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, आपके पास आपका आईडी है, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी एक चीज़ है कि बहुत सारे बीमार पाकिस्तान आते हैं। आपके ऐसे स्प्लिट फैमिलीज़ हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, बाकी वहाँ हैं, लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं। तो आपके जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, हमने देखा कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की आमद और उनकी वापस जाने की जो है ना वो उनके जो क्या कहते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। इस हवाले से आपने दस्तावेज़ात की बात की, सफरी दस्तावेज़ात की। अब एक बड़ा मसला अफ़गान अगर कोई इन प्रॉपर दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना चाहता है, वो ये भी है कि काबुल में अक्सर सफारत खाने बंद हैं, सिर्फ पाकिस्तान का खुला हुआ है और वो भी लिमिटेड वीज़ेज़ दे रहे हैं। लेकिन जो मैं वहाँ होके आया तो मुझे तो यही लगा कि अक्सर अफ़गान जो हैं वो वीज़े और पासपोर्ट लेना चाहते हैं। अभी वहाँ पासपोर्ट का दफ्तर भी बंद है, अभी शनाख्ती कार्ड भी अफ़गान का नहीं शुरू हुआ, तो वो उसके बाद ही मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अगर बग़ैर दस्तावेज़ात वाले अफ़गान आते हैं तो वो उसका कितना इम्कान है? देखिए ना, जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड है वो बहुत गैर यकीनी है। अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कि आगे के हालात क्या होंगे, और डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, कहीं पे भी आपकी शनाख्त ज़रूरी है। लेकिन ये भी है कि जब आप इतने मजबूर हों कि आप जान बचाने के लिए घर बार छोड़ के बच्चों के समेत कहीं और निकलें, और हो सकता है आपके पास आपके दस्तावेज़ ना हों, तो जब आप पनाह की तलाश के लिए निकलेंगे वो जुर्म नहीं है, क्योंकि आप जान बचा के निकले हैं। बाकी सूरत हाल में जैसे लोग निकलते हैं तो उनको ममालिक इंडिविजुअली अपने कानून के हिसाब से डील करते हैं। जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि हमारे इदारे के जो सरबराह हैं फिलिपो ग्रांडी, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, वो यहाँ हैं। यहाँ आने से पहले वो 3 दिन अफ़गानिस्तान में रहे। उन्होंने काबुल में वक्त गुजारा। उन्होंने वहाँ के जो अब के नई जो सेटअप है या इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ डिस्कशंस किए। वो मज़ार शरीफ भी गए। मकसद ये था कि दुनिया भर को ये बताया जाए कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कितनी गंभीर है, और उनको ये कहा जाए कि इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन एड की बहुत ज़रूरत है। पसो पेश सियासत क्या करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, किस तरह से डील करते हैं, वो आप पहले जो वहाँ के लोग हैं उनकी जानों को जो है ना प्रायोरिटी दें कि ताकि उन तक वो चीज़ें पहुँचें। पाकिस्तान जैसा मुल्क इस वक्त यहाँ पे 14 लाख के करीब रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन हैं। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है अफ़गानों की मेज़बानी के लिए। तो हम ये भी उनको बताना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम UNHCR जो मेरा इदारा, हमने पाकिस्तान को एक ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर पाया है। आप भी इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएं।
रिकग्नाइज़ करें कि इस मुल्क ने रेफ्यूजीज़ के लिए बहुत किया है, और उसको आप रिकग्नाइज़ करें, उनमें उस सॉलिडेरिटी में आप खड़े हैं उनके साथ, क्योंकि आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि एक ऐसा मसला जो इंसानी मसला हो, जो आलमी मसला हो, जो एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और आप छोड़ दें उसको पाकिस्तान पे, ईरान पे और तुर्की पे कि आप इनको लुक आफ्टर करें। आपने हाई कमिश्नर की बात की, फिलिपो ग्रांडी की, वो अफ़गानिस्तान हो क्या है, तो उनकी क्या असेसमेंट थी? आप लोगों की अपनी इंटरनल असेसमेंट क्या है? तालिबान का रवैया, वो पब्लिकली तो वो कह रहे हैं कि जिसके पास दस्तावेज़ात होंगी उनको हम जाने देंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो क्या जिनके पास नहीं होगी, जिनको अभी भी जान का ख़तरा है, वो फिर नहीं निकल सकेंगे अफ़गानिस्तान से? क्या होगी पॉलिसी तालिबान की? जो हमारी डिस्कशंस रही हैं उसमें यही था कि वो भी ये मानते हैं कि लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने ये माना है कि वो हालात होने ही नहीं चाहिए कि जिसमें लोग मजबूर हों अपना वतन छोड़ने पे, और वो साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों को इमदाद की ज़रूरत है वो इमदाद उन तक पहुंच सके और बर वक्त पहुंच सके। तो हमारे साथ उनका जो तावन है वो रहा है, और इस हद तक रहा है कि अभी हमने जो इमदादी सामान है पाकिस्तान से वो मूव करना शुरू किए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ काम करके वो ले जा सकते हैं जो लॉजिस्टिक है, उस तरफ हमें उनकी तरफ से ये गारंटी या एश्योरेंसेस चाहिए कि वो जो सामान है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा और लोगों को, तो वो ताउन है। अब आगे ये देखना है, और जो पेचीदा चीज़ें हैं जिस पे दुनिया भी उनसे बात कर रही है और देख रहे हैं किस तरह से, वो हैं लोगों के हकूक़, लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़। उसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं कि वो कैसे अपने स्कूल वापस जाएंगे, यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, ख़वातीन के हकूक़, ये सारी चीज़ें हैं कि जिनको आगे चल के देखने की ज़रूरत है कि उनका स्टांस इस पे क्या होता है या किस तरह से चीज़ें इवॉल्व होंगी। ये तालिबान का आपने बताया कि उनकी क्या पॉलिसी और क्या हो सकती है पॉलिसी। पाकिस्तान की बात करें तो अब तक जो मैसेजिंग हुई है पब्लिकली वो तो यही है कि जी कोई हम रेफ्यूजीज़ नहीं छोड़ेंगे, किसी किस्म का हम मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कहीं लचक नज़र आती है पाकिस्तान में भी, या पाकिस्तान कल को खुदा न खास्ता अगर सैलाब आता है तो दरवाज़े बंद करके बैठ जाएगा? देखें, जो नेक नामी पाकिस्तान ने हासिल की है पिछले 40 साल में, 4 दहाइयों का द्वार छोटा तो नहीं होता। इसमें उन्होंने हर ऊंच नीच में अफ़गान लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए हैं। हम वो इदारा हैं जो हम पाकिस्तान में रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी हमारी मौजूदगी है और ईरान के साथ, तो हमने मिल के काम किया है। हम आज बाहर से नहीं आए, तो हम ये तवक्को रखते हैं कि जब लोगों पे या जिन लोगों पे ये मुश्किल पड़े, जिस तरह से वो मेज़बानी पहले वहाँ थी, उन लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ख़त्ते के और ममालिक, और ख़त्ते के और ममालिक क्यों, उससे बईद क्यों नहीं। जब जो सवाल हम यहाँ उठा रहे हैं, जब यूरोप आप जाते हैं वो भी यही कहते हैं कि अफ़गान निकलेंगे तो हमारी तरफ कितने आएंगे। मतलब फोकस ज़िंदगी बचाने के लिए, जान बचाने के लिए होनी चाहिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए, और फिर वहीं जाते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त 40 मिलियन लोग हैं, उनकी नज़रें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ और ममालिक की तरफ हैं कि क्या वो मदद जो उनको इस वक्त चाहिए इन पेचीदा हालात में, वो मदद उनको मिल सकेगी या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान का क्या होमवर्क कुछ नज़र आया? आप लोगों ने देखा कि ऊपर से तो यही पब्लिक स्टेटमेंट है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उस तरह की सूरत हाल जैसे मैं कह रहा हूँ बन जाती है तो क्या कैंप्स नए बनेंगे या उन्हीं को दोबारा देखा जा रहा है, या कोई ऐसा होमवर्क है, या बिल्कुल ही कोई तैयारी नहीं है, पाकिस्तान बंद है दरवाज़ा? पाकिस्तान के पास जो एक्सपर्टीज़ हैं रेफ्यूजीज़ के हवाले से, और हमने जो उनके साथ काम किया है, वो उसमें बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जहां पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज़ के लिए जो काम किया है वो दुनिया में उसकी एक अपनी मिसाल है। आप फ़र्ज़ कर लें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेके हेल्थ सर्विसेज, और अभी हाल ही में जो आपने देखा था कि रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूजन, ये सारी जो एक्सपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के पास हैं और हमारा ताउन उनके साथ है। लेकिन इस वक्त ये प्रेडिक्ट करना कि कल क्या होगा और क्या हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए
وہ مدد عالمی طور پر ہونی چاہیے جنہوں نے پہلے سے ہی اتنے لوگوں کی جو ہے نا میزبانی کی ہے کہ کل کو اگر ضرورت آئے تو دنیا ایسے نہ ہو کہ پاکستان کو پھر سے تنہا چھوڑ دے اور پھر کہے کہ جی یہ آپ سنبھالیں۔ ایک جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ میری ہیڈ لائن بن پائے، اور وہ ہے کہ جو ہم نے اس گفتگو سے پہلے ٹاپ لائن بھی یہی دی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ سیلاب کا امکان ہے یا نہیں، پناہ گزین آ سکتے ہیں پاکستان یا نہیں؟ میرے خیال میں قبل از وقت ہے۔ جو اندیشہ ظاہر ہو رہا ہے، جو انڈیکیٹرز لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا خدا نخواستہ تو کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سسٹم بالکل ہی کولیپس کر جائیں، لوگ نان شبینہ کے لیے مجبور ہو جائیں۔ ابھی بھی ورلڈ فوڈ پروگرام، ہمارا جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے خوراک کے ایکسپرٹیز ان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہر 3 میں سے 1 جو ہے نا افغان، اس کو شاید پوری خوراک نہیں مل رہی۔ سروسز آپ کے نہیں ہیں ہیلتھ کے لیے، آپ کو پتہ ہے بینکوں کے باہر قطار، وہاں پہ ان کی جو روزگار کی صورتحال تھی وہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر ان سب کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اور پیچیدہ مرحلے سے گزریں افغانستان کے اندر۔ بابر بلوچ صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ بابر صاحب کو آپ نے سنا، ابھی بہت سے ایسے عوامل کار فرما ہیں جن کی وجہ سے صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، تو آنے والے دن جو ہیں وہ اس اعتبار سے کافی اہم ہیں۔ اللہ کسی کو گھر چھوڑنے پر مجبور نہ کرے، بہت ہی مشکل زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پناہ گزین بننا۔ تو امید یہی ہے کہ وہ شاید نوبت نہ آئے، لیکن اس میں بین الاقوامی برادری انکلوڈنگ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، اور سب سے زیادہ کردار بڑا جو ہے وہ طالبان کا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ اپنا ملک نہ چھوڑیں اور ان کے لیے مستقبل جو ہے وہ تابناک ہے۔ انہی خیالات کے ساتھ ہارون رشید کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔